जी जी मैम। Start your presentation. जी शुड आई स्टार्ट? मैम शुड आई स्टार्ट? I said yes. असल में मैम तव्हांजो आवाज़ सफ़ा घटि पियो अचे, स्लो पियो अचे। जी जी तव्हां स्टार्ट करो। जी अस्सलाम वालेकुम, my respected teacher and my dear class fellows. Good morning. Hope you are all doing well. And I am Zara, and my presentation topic is on the concepts of innovation in curriculum. First of all, what is the concepts? Concepts is it is organized a main idea or general idea. In part, it's called concept. And what is the innovation? Innovation is a new service quality. Innovation is the introduction of something new and is a new idea. Innovation उसको कहते हैं कि कुछ न्यू चीज को करने के लिए न्यू आइडिया आए या न्यू आइडिया से कुछ चीज को न्यू बनाना, इफेक्टिव बनाना, इट्स कॉल्ड innovation. It is the definition of innovation. Further, we can say innovation is a new service quality for students or a new way of supporting learning. इनोवेशन क्या है? न्यू सर्विस क्वालिटी है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी लर्निंग में सपोर्टिंग कर होती है इनोवेशन की मदद से, एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ टीचिंग. सो नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ innovation: new way of doing things, new sources of supply, and the carrying out of a new organization. न्यू तरीके से चीजों को करना एंड न्यू सोर्सेस सप्लाई करना, एक नई तंजीम बनाना, is often used to describe solutions to problems which represent a change or departure from current practice, improvements within an existing framework. इनोवेशन अक्सर इस्तेमाल होता है जो कि तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। मौजूदा फ्रेमवर्क में मैनेजिंग के अंदर मौजूद अमल में होने वाली बेहतरी को, मौजूदा होने वाली काम को बेहतर बनाता है, इसका इनोवेशन. मैम नेक्स्ट स्लाइड. There are the three kinds of innovation in education structure. First of all, the structure, then content, and third is process. In structure, the ways in which classroom and schools are organized, जिसमें classroom and schools का organize किए जाते हैं. Content, introduce subjects not previously included in the curriculum or those that revise old subjects in new ways. Content में सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि ओल्ड सब्जेक्ट्स उसमें रिवाइज किया जाए. एंड थर्ड इज द प्रोसेसेस, दोज दैट हैव टू डू इन ह्यूमन इंटरेक्शंस. प्रोसेस में ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, मीन्स के स्टूडेंट्स का, टीचर्स का क्लासरूम में. मैम नेक्स्ट स्लाइड. Innovative, the cognitive or intellectual domain as well as the affective domain in education. Innovative है cognitive इंटेलेक्चुअल डोमेन है, एंड इफेक्टिव डोमेन एजुकेशन में है. मीन्स के इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डोमेन का मतलब के नॉलेज हासिल करना, स्किल्स डेवलप करना, उनकी मदद से इनोवेशन लाना. रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, लर्निंग टू नो, टू डू, टू बी एंड टू लिव टुगेदर. इनोवेशन की मदद से तालीमी निज़ाम में एक साथ रहना और रहने के लिए जानना सीखना, इसका इनोवेशन.
increasing the role of scientific literacy and technological skills. Innovation scientific literacy को बढ़ाता है, technological skills को in the society. We can say further, scientific literacy is now taken to mean that everyone should have a working knowledge of science and its role in society. Ma'am, next slide. Here are the difference between innovation and change. Innovation, new curriculum teaching the subject in new way. New curriculum को पढ़ाना with a new subject की alteration होना book में is called change. Ma'am, next slide. There are the two types of change: selective content change and directive content change. It is occurs when outside change agents introduce new ideas or practices into a social system. इसमें आउटसाइडर या एजेंट्स जो होते हैं न्यू आइडियाज शेयर करते हैं थ्रू दी प्रैक्टिसेस ऑफ इनटू अ सोशल सिस्टम. डायरेक्टेड कंटेंट चेंज में आउटसाइडर occurs when outside change agents introduce new ideas or practices into a social system in order to fulfill goals. इसमें जो कि एजेंट्स होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं बाहर की, वो न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस कराते हैं सोशल सिस्टम में एंड अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए. मैम, नेक्स्ट स्लाइड. The planning of work, organizing the distribution of activities and tasks to other people, direction of subordinate staff, and the controlling the performance of their people works. इसमें जो कि काम करने की मंसूबी होती है दूसरों लोगों की काम की तकसीम को और उनकी आवाम की कारकर्दगी को कंट्रोल किया जा सकता है. Teachers are key planners in all language teaching innovations. Teachers में innovation में teaching में we can say learning में main role है innovation का. Gaining knowledge about innovation, being persuaded of its value, confirming or disconfirming their previous decisions. इनोवेशन के बारे में इल्म हासिल करना और अपनी कीमती फैसलों को तौसीक करना या उसकी तस्दीक करने पर कायल हो जाता है. Where an innovation is implemented is a social culture, not geography issue. जबकि इनोवेशन क्या इम्प्लीमेंट है सोशल कल्चर में, इट्स नॉट अ geographical issue. That's it. Thank you for listening. मैम, खत्म. Good presentation, Zara. Thank you, ma'am. There is some need to improve थोड़ा सा स्कोर पर, क्योंकि आप सब लोगों की फर्स्ट टाइम है. सो वैसे अदरवाइज अच्छा प्रेजेंट किया आपने. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है ज़ारा से? No, ma'am, it's clear. Okay, Zara, tell me, how can you find a new way of doing things? Or we can say that, how can you find a new sources? मैम, जैसे कि आजकल न्यू सोर्सेस का पता चल रहा है और उसमें
बंदे को ये भी एबिलिटी है कि न्यू सोर्सेज एंड ऑल सोर्सेज में क्या फर्क है और व्हाट इज द बेटर। सो मिसाल तौर पर एक बच्चा है, उसको आप बुक रीड करवा रहे हैं, तो आप जी देख रहे हैं वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो आप उसमें न्यू वे क्या सोचेंगे कि जिससे वो बच्चा पढ़ सके? मैं बुक में वो अल्टरनेशन कराऊंगी कि जैसे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसमें मैं पिक्स डालूंगी इंटरेस्टिंग थ्रू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड लेसन, ताकि बच्चा अगर ऐसे नहीं पढ़ रहा तो उसको देखकर इंटरेस्ट ले एंड अटेंशन दे। अगर फिर भी नहीं कर रहा तो जैसे कि आजकल काफी सोर्सेज और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं न्यू, मीन्स के मीडिया मल्टीमीडिया, तो वो इसके लेसन के मुताबिक वो वीडियो बनाना है, दिखाना। तो मे भी चिल्ड्रेन फिर इंटरेस्ट ले, क्योंकि मोस्टली चिल्ड्रेंस होते हैं वो ज्यादा मीन्स के देखने को प्रेफर करते हैं, मीन्स के सुनने को प्रेफर करते हैं अगर छोटे बच्चे होते हैं तो, रादर देन रीडिंग। What do you mean by reorientation of educational system? मैम Reorientation जी कैसे? जी मैम उधर What do you mean by reorientation of the educational system? मिस रीओरिएंटेशन मीन्स के इट्स अ चेंज सेट ऑफ एटीट्यूड्स, मीन्स के जो एजुकेशन में एटीट्यूड्स है, मीन्स के पढ़ाई का, मीन्स के जो का रूल है उनको चेंज करना, इसका ओरिएंटेड रीओरिएंटेशन। मतलब जैसे पहले हमारे पास ये था, किताब था, बच्चा था और सारा दिन उनको पढ़ाना पढ़ाना रटवाना, ये सारी चीज़ें थी। फिर हमने उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी। तो ये सारी क्या है, रीओरिएंटेशन से हमने वो चीज़ें उनके अंदर जी हम चेंज लाए हैं, वो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स लाए हैं जिससे उनकी ज़्यादा एनहांसमेंट और लर्निंग के अंदर। तो रीओरिएंटेशन इस वे में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को, किसी भी करिकुलम को करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। गुड। जी और किसी की प्रेजेंटेशन है आज? राहिला, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई है? यस मैम। हैरुनिसा? नहीं मैम, मेरी नहीं है, पर आज थोड़ा सिग्नल्स का प्रॉब्लम है तो इसलिए मेरा नेट बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं आज नहीं दे सकती, फिर आप जैसा कहें। कल आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो हो जानी चाहिए। इस वीक के अंदर जो प्रेजेंटेशन देगा उसकी प्रेजेंटेशन हो जी जाएगी। मैम। अदरवाइज जो है उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो प्रेजेंटेशन आप लोगों की ऑलरेडी बहुत डिले हो रही है। ओके ठीक है मैम, जब कल मैं